متحدہ عرب امارات کے سفیر کی بلاول ہاؤس آمد۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے اماراتی سفیر حماد عبید الزاہبی کا استقبال کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ زبیر، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی بلاول ہاؤس آمد ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی ہے۔ اماراتی سفیر حماد عبید الزاہبی اور قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق الرمیتی نے خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب بھی موجود تھے، جبکہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر ملاقات میں وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے، ثقافتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور سماجی ترقی، عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کی راہیں تلاش کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ جبکہ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے دونوں ممالک کے درمیان درینہ اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے پاکستان میں ترقی اور انسانی ہمدردی کی کوششوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کا اعتراف کیا۔ دورہ کرنے والے معززین نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔ جی زبیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ سندھ سرکار نے محکمہ خوراک کی لانٹھی اور دیگر گوداموں میں ذخیرہ کی گئی گندم خراب ہونے کا نوٹس لے لیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے محکمہ خوراک کو 3 روز میں سروے کر کے فزیکل ویریفیکیشن کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں مانسون کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے زائد قیمت پر چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سندھ سرکار نے محکمہ خوراک کی لانٹھی اور دیگر گوداموں میں ذخیرہ کی گئی گندم خراب ہونے کا نوٹس لے لیا ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے محکمہ خوراک کو 3 روز میں سروے کر کے فزیکل ویریفیکیشن کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اجلاس میں مانسون کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے زائد قیمت پر چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ انٹرمیڈیٹ 12ویں جماعت کے ہوم اکنامکس اور خصوصی امیدواروں کے نتائج جاری۔ آرٹس ریگولر گروپس کے سالانہ امتحانات برائے 2025 کے نتائج کا اعلان۔ ہوم اکنامکس گروپ میں رنایا لیاقت علی خان گورنمنٹ کالج کی طالبہ ارم فیصل نے A1 گریڈ کے ساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید زبیر راشد سے۔ زبیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ چیئرمین انٹر بورڈ فقیر محمد لاکھو کے منصب سنبھالتے ہی ان کی پہلی یہ کوشش تھی کہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج وہ کسی تاخیر کا شکار نہ ہو، اور اس کی پہلی کرن وہ ہم نے دیکھ لی ہے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے انٹرمیڈیٹ 12ویں جماعت کے ہوم اکنامکس اور خصوصی امیدواروں کے نتائج وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آرٹس ریگولر گروپس کے سالانہ امتحانات برائے 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہوم اکنامکس گروپ میں رانا لیاقت علی خان گورنمنٹ کالج کی طالبہ ارم فیصل نے A1 گریڈ کے ساتھ پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ ایمان ہاشمی نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ شانزہ نایاب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ خصوصی امیدواروں کے امتحانات میں دیوا ہائر سیکنڈری اسکول کی طالبہ سیدہ فریہ نے پہلی پوزیشن اپنے نام کی، جبکہ دیوا ہائر سیکنڈری اسکول کی ہی طالبہ بریرہ اسلام نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ آئیڈیا ڈو اسکول اینڈ کالج فار ڈیز کے طالبہ ایمان الشمس تیسری پوزیشن انہوں نے اپنے نام کی، جبکہ ناظم امتحانات زرینہ راشد کے مطابق اکنامکس گروپ کے 198 طالبات نے رجسٹریشن حاصل کی تھی۔ 189 طالبات امتحانات میں شریک ہوئیں، 112 طالبات کامیاب ہوئیں۔ اس طرح کی کامیابی میں تناسب 59.26% رہا، جبکہ امتحانات میں 9 طالبات A1 گریڈ اور 24 A گریڈ اور 30 B گریڈ اور 31 C گریڈ اور 18 D گریڈ میں کامیاب ہوئیں۔ خصوصی امیدواروں کے امتحانات میں 116 امیدواروں نے رجسٹریشن کی، جبکہ 114 امیدوار امتحانات میں شریک ہوئے، 103 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اس کا تناسب 90.35% رہا، جبکہ امتحانات میں 19 امیدوار A1 گریڈ، 55 A گریڈ، 27 B گریڈ اور 2 امیدوار C گریڈ میں کامیاب ہوئے۔ جی زبیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔
कराची यूनिवर्सिटी के 33वें सालाना कॉन्वोकेशन की कामयाब इजरा पर अशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा और फैकल्टी सरबराहान भी शरीक हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी कहते हैं कि इस तरह की तकरीबात मिल बैठने का बहाना है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल। जिस वक्त हम मौजूद हैं कि ऐसी पुरवकार तकरीब में जहाँ पर KU की जानिब से 33वें कॉन्वोकेशन का आज खुशी का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम असातिज़ा एक साथ मौजूद हैं। शेखुल जामा हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद इराकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या कहेंगे तालीमी इदारों में जहाँ पर तालीम की बात होती है, तरबियत की बात होती है, मगर इस तरह के गेट टुगेदर, इस तरह के प्रोग्राम्स कितने ज़रूरी हैं, जहाँ पर टीचर्स एक साथ होते हैं, फैकल्टी के लोग आपस में मिलते हैं। सर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस जैसे प्रोग्राम होने चाहिए, बिकॉज हम जर्नली सिर्फ एकेडमिक्स में इंगेज होते हैं, मगर इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम इनफॉर्मल तरीके से अपनी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट भी करें। एक जर्नली एक जो माहौल है, लोग जिस टेंशन में रहते हैं, आई थिंक ये एक मौका है जिसके अंदर हम एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। कॉन्वोकेशन हमारा बड़ा कामयाब रहा, तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि एक पोस्ट कॉन्वोकेशन डिनर की जाए और उन तमाम फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करें और अपनी फैकल्टी का शुक्रिया भी अदा करें, बिकॉज कन्वोकेशन होना बहुत ही एक हेक्टिक टास्क है जो कि एक फर्द नहीं कर सकता। पूरा एक टीम वर्क है, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं सबकी मेहनत होती है। और वैसे तो काम के हवाले से बातचीत रहती है, मगर जब इस तरह की तकरीबात होती हैं तो आपसी बातें भी होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिस्कस होती हैं, और कितना असातिज़ा एक दूसरे के करीब आते हैं, और क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इससे एक मौका मिलता है कि वर्क अदर देन वर्किंग रिलेशनशिप, एक कल्चरली हमारे माशरे में होता है, जैसे ईद मनाते हैं, एक दूसरे के हेल वहल करते हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि फैकल्टी को काफ़ी मौका मिलता है। 33 साल हो गए और 33वां कन्वोकेशन था, उसके बाद असातिज़ा की भी हौसला अफजाई के लिए इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। और आज कराची का मौसम भी खुशगवार है, इस खुले आसमान में इस तकरीब से यहाँ पर मौजूद असातिज़ा खासे महसूस हो रहे हैं। शहर क़ैद में हब्स की सूरत हाल, मतला अबरालूद और मरतूब। तेज़ बारिश की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। शहर में आइंदा 20 घंटों के दौरान बारिश होगी, लेकिन हल्की। महकमे मौसमियात की जानिब से आए रोज़ पेशगोई पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं कि महकमे मौसमियात रोज़ बारिश की नवी सुना देते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के बासी तेज बारिश की आस लगा लगा कर थक गए। रोजाना मौसम बनने के बावजूद मूसलाधार बारिश न हो सकी। महकमा मौसमियात की रोजाना की बुनियाद पर होने वाली पेशगोइयां भी काम न आई। आइंदा 24 घंटों में एक मरतबा फिर बूंदाबांदी की पेशगोई। शहरी भी बादल न बरसने पर परेशान दिखाई दिए। कहा पौधों की कमी सबसे बड़ी वजह है, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाना तो बहुत ज़रूरी है। पंजाब साइडों पे, सिंध साइडों पे बारिश हो रही है, कराची में बारिश नहीं हो रही ना, तो पौधे अगर लगाओगे तो मौसम सही हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। कौन कौन से पौधे आपको लगता है लगाने चाहिए? नीम का लगाना चाहिए, सफ़ेदे का लगाना चाहिए, कीकर लगाओ जो दरख्ती आइटम में जो दरख्त बने। कुछ शहरियों ने तो गुस्सा महकमा मौसमियात पर निकाल दिया। कहा रोज बारिश का कहा जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। महकमा मौसमियात वाले तो रोज़ाना कहते हैं कि बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है। अब तो हम दुआएं कर करके भी थक गए, लेकिन बारिश नहीं हो रही। पंजाब में भी देखें ना, आप बारिशें हुई हैं, मौसम कितना अच्छा हो गया। अगर यहाँ भी हो जाएंगी तो मौसम बेहतरी होने का इम्कान है। शहर कायद में पहले स्पेल के दौरान सबसे ज्यादा बारिश 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, ताहम दूसरा स्पेल बूंदाबांदी तक ही महदूद रहा। अब शहरी तीसरे स्पेल में तेज बारिश के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन क्या उनका ये इंतजार खत्म होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राना जाजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मुंतखब नुमाइंदगान और टाउन अफसरान में टकराव बढ़ने लगा। खैरपुर ज़िला की टाउन कमेटी सेठारचा के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सादिक काउंसलर्स के हमरा सिंध सेक्रेटरीट पहुंच गए। करप्शन पर वज़ीर और दीगर हुकाम बाला को कार्रवाई का मुतालबा। मोहम्मद सादिक टाउन अफसर मोहम्मद अयूब फलियों के खिलाफ फट पड़े। सिटी 21 से बातचीत करते हुए कहा कि यूसी सेक्रेटरी 14 ग्रेड के मोहम्मद अयूब फलियों को 17 ग्रेड की पोस्ट पर टाउन अफसर गैर कानूनी तैनात किया गया है। जाली NIT करके 16 करोड़ की करप्शन की गई। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक लोन है, बाईकास में टाउन कमेटी से ठारजा से आया हूँ। मेरी डेजिग्नेशन है, मैं वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी से ठारजा से हूँ। जैसा कि ये है कि हमारे यहाँ जो है एक ऐसा जो है TMO लगाया गया, वो 14 स्केल का है। जो डेस्टिनेशन है बेसिकली 16 से 17 स्केल वालों का है।
ये ड्यूटी सेक्रेटरी से प्रमोट होकर 14 स्केल के अपॉइंट किया, जो हमारे यहाँ डेजिग्नेशन बनती नहीं है। इन्होंने 15 माह से लेकर आज तक हमने पहली बार फारूक चेयरमैन को आगाह करते हुए रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है ये TMO साहब करप्शन कर रहे हैं, आप इसको रोकें। वो नहीं किया, इलीगल भर्ती की है ना, मुख्तलिफ दूसरी स्टेट टाउन कमेटी से शारजा में उनकी अंडर एज है। 2012 से लेकर आज तक वो 2013 में भर्ती किया, लेकिन NIC जो बना हुआ है 1 साल वो छोटा है। वो 5 से 7 लाख रुपए इलीगल अपॉइंट किया और इलीगल उन्होंने उठाए हैं। और एक हमारा बंदा है वो सऊदी का अरब है, पता नहीं क्या है, वो भी पे उठा रहा है। हमने एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब को दी हुई हैं और जो चीफ जो सेक्रेटरी हैं एंटी करप्शन उनको दी हुई है और एंटी करप्शन डायरेक्टर एंटी करप्शन को भी दी हुई है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने इदारों से कि वो साफ और शफाफ इंक्वायरी करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे, आवाम का पैसा आवाम पे ही खर्च करवाएंगे इंशाल्लाह। अजरक वाली नंबर प्लेट की आड़ में शहरियों से इजाफी टैक्स नहीं वसूल किया जाना चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स नजम मिर्जा कहते हैं कि सिंध असम्बली में अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट से मुतालिक पेश की गई करारदाद दुरुस्त हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कायमा कमेटी का इजलास रवा माह होगा। करारदाद के मतन से तो किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि ज़ाहिर बात है अजरक जो है वो सिंध का सकाफ़ती वर्सा है और जब भी हम किसी तकरीब में जाते हैं या अपने पास किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हम अजरक तोहफ़तन देते हैं। जो नंबर प्लेट ये 2018 का प्रोजेक्ट है। RFID जो नंबर प्लेट्स हैं वो तमाम लोगों को देनी थी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के जो कैमरे लगे हैं वो इन नंबर प्लेट्स के डाटा रीड करेंगे और सिंध में जो जारी क्राइम और जराइम है वो जो है वो कम हो सकेंगे। तो ये जो करारदाद जमा हो गई है इससे तो किसी को इनकार ही नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो इनकी नाअहली है ये उसको छुपाने की ये जो करारदाद है वो साजिश है। देखिए मैं खुद एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ। तो हमने 24 तारीख को एक रिक्वेस्ट की है कि इस इजलास को बुलाया जाए और उसमें ब्रीफिंग ली जाए कि अभी तक कितने लोगों को ये मिल चुकी है नंबर प्लेट और कितने लोगों ने अप्लाई किया है। आम आदमी वहाँ पे धक्के खा रहा है, रश लगा हुआ है वहाँ पे। तो हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया है उसमें हम ये बात डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भाई कि जिनकी पुरानी नंबर प्लेट्स आपने नहीं दी थी उनको आप विदाउट कॉस्ट ये नंबर प्लेट्स दें। मोटरसाइकिल और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स शहरियों को बिला किसी मुआवजा फराहम की जाएं। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। रुकने सिंध असम्बली फौजिया हमीद कहती हैं कि सिंध हुकूमत अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट्स की आड़ में शहरियों से लूट मार बंद करे। अंदरूनी सिंध में अजरक के डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट्स के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो अजरक की जो नंबर प्लेट्स लगाई हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके मुशीरान कौन हैं, कौन इनको ये मशवरे दे रहे हैं। अजरक जो है वो सिंध की इज़्ज़त को रिप्रेजेंट करती है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम इस तरह तो नहीं गली कूचों में और सड़कों में उसको पामाल कर सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे तहफ़्फ़ुज़ है, बिल्कुल इसको नंबर प्लेट्स पे नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब इनसे और तो कोई इनको समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ से लें, क्योंकि इनकी करप्शन से इनका पेट भर ही नहीं रहा। तो उन्होंने एक नया तरीका कार जो है वो वज़ा कर लिया है जिसमें ये नंबर प्लेट्स हैं। बाइक्स पे आपने उनको रोका हुआ है और जब आप कंपैरिजन करते हैं इंटीरियर सिंध विद कराची तो अर्बन सिंध के आप जो है चेकिंग भी कर रहे हैं, वहाँ चालान भी कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही हैं। तो ये जो तफरीक पैदा की जा रही है बाय डिज़ाइन, इससे कराची के लोगों में नफ़रत पैदा हो रही है और आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो फिर आपको ये झलक आइंदा आने वाले इलेक्शंस में नज़र आएगा। ये होना नहीं चाहिए। आप लोगों को फैसिलिटेट करें, आप गवर्नमेंट में हैं, लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि आप उनके हकूक़ को इस तरह से पामाल कर रहे हैं, उनको इनसिक्योरिटी का शिकार। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कमीशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए हुकूमत को हड़ताल की धमकी दे दी है। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं कि पहले मरहले में पेट्रोल पंप्स पर एहतजाजी बैनर्स लगाए जा रहे हैं, मुतालबात ना माने गए तो पेट्रोल पंप बंद किए जाएंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल मिले ना मिले, मामला अब कमीशन का है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कमीशन में इजाफा करें वरना पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान का कहना है कि वो गुज़िश्ता 8 माह से कमीशन में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हुकूमत ने सिर्फ वादे किए, अमल कोई नहीं किया। 8 महीने पहले गवर्नमेंट ने वायदा किया था आपसे जो
पिछली हुकूमत ने जो वायदा किया हम उस पर अमल करेंगे और आपके जैसी जैसे कीमत बढ़ती रहेगी हम अपने प्राइस में उसमें शामिल करते रहे। तो ये एक बहुत ज़्यादती है। अब्दुल समी खान का कहना था कि पहले मरहले में पेट्रोल पंप्स पर एहतजाजी बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं, मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला किया जा सकता है। हमने पाकिस्तान में कहा है कि आप बैनर लगाएं और एहतजाज करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और फिर भी अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनती तो हमारे पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है, हम अपने पेट्रोल पंप बंद कर दें। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाजे किया कि कमीशन में इजाफा अब डीलर्स के बका का मसला बन चुका है। अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम ना किए तो हड़ताल का दायरा पूरे मुल्क तक फैल सकता है। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियारी का बड़ा इक़दाम। बैनुल अक़वामी बॉक्सर मारिया रिन बलोच चाइना में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। सिंध हुकूमत और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियारी ने एशियन गेम्स तक रसाई के लिए मारिया रिन बलोच का स्पॉन्सर बनने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियारी का बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। बैनुल अक़वामी बॉक्सर मारिया रिन बलोच चाइना में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी करेंगी। सिंध हुकूमत और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियारी का एशियन गेम्स तक रसाई के लिए मारिया रिन बलोच का स्पॉन्सर बनने का जो है वो फैसला किया गया है। चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच और म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान की आज जो है वो मारिया रिन से जो है वो मुलाकात हुई है। मारिया रिन बलोच की एशियन गेम्स में हिस्सा लेने पर जो है उनकी भरपूर हौसला अफजाई भी जो है वो की गई है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान का कहना था कि बैनुल अक़वामी बॉक्सर और गोल्ड मेडलिस्ट मारिया रिन बलोच पर हमें फख्र है। लियारी की बेटी मारिया रिन बलोच पाकिस्तान का नाम जो है वो एशियन गेम्स में जो है वो जरूर रोशन करेंगी। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इक़दामात उठा रही है। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब अपडेट करने के लिए। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी की चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात में ताहिर तारड़ डायरेक्टर जनरल लीगल पेमरा, तमसील हैदर डायरेक्टर जनरल NPSO2 चेयरमैन भी शरीक थे। मुलाकात में केबल्स ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान केबल्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सैयद गुफरान मुश्तबा ने केबल्स ऑपरेटर के मसाइल से आगाह किया। सिंध में ज़रूरी आमदनी टैक्स के नफाज से मुतालिक वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार की ज़ेर सदारत इजलास। टैक्स नफाज की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी का सिंध ज़रूरी इनकम टैक्स 2025 पर मुश्तमिल ड्राफ्ट की जुमला तरजीहात और तजावीज़ का असर-ए-नौ जायज़ा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर बहस के बाद ज़रूरी हिदायत दी गई। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध टीचर्स एसोसिएशन एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड का 18वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में स्टेडा के एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर रसूल बख्श शाह, बोर्ड मेंबरान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में असासा की भर्तियों, टीचर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग और टीचर्स लाइसेंस के अलावा स्टेडा के इक़दामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। JUI ज़िला गरबी के वफ़द की बहादुराबाद मरकज़ आमद। मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार से मुलाकात। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने सरजानी टाउन के मसाइल से आगाह किया। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला गरबी के जनरल सेक्रेटरी क़ारी अशरफ मेंगल ने वफ़द के हमरा फारूक सत्तार से मुलाकात की। इस दौरान सरजानी टाउन पानी की संगीन क़िल्लत, गैर एलानिया लोड शेडिंग और पार्कों की कटाई जैसे मसाइल पर आगाह किया गया। JUI के वफ़द ने शिकवा किया कि मुतालिका इदारे मसाइल के हल में मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं।
پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن نے جاپان کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ فوجی سر کر لی۔ اسد نے کراچی سے جاپان تک کا سفر تمام انتظامات تنہا کیے۔ کراچی کو ایک اور اعزاز مل گیا۔ کوہ پیما اسد علی میمن نے جاپان کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ فوجی سر کر لی ہے۔ اسد علی کا کہنا تھا کہ بغیر کسی ٹیم یا اسپانسر کے مکمل خود انحصاری کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ماؤنٹ فوجی کی چوٹی پر سورج کی پہلی کرن نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔